welcome to the Broadcast Bros podcast. Today, on the Broadcast Bros podcast, we are joined by a true veteran of the corporate world, Mr. Piyush Gujarati, with over 2 decades of diverse experience across multiple domains. He has mastered the art of multitasking, carved a reputation as a sharp negotiation expert, and brings deep domain expertise in the BFSI sector. Get ready for an engaging conversation packed with insights, strategies, stories from his remarkable journey. So we have Piyush, let's welcome him. So guys, we have Mr. Piyush Gujarati with us and let's ask him the very first question today. So Piyush, tell us, I'll just give you a quick situation here. What if you are an 18-year-old chap? So what would be your advice to the all Gen Zs out here? If you were given a chance to go back 20 years of your experience and you are currently an 18-year-old chap, so would you still go for the traditional way what you chose 20 years back? Go into a job, get dressed up, follow that routine every day and then focus, work and this today? Or else you would have taken a non-traditional path, something out of the box. What would be your take? Thanks, Prakar, for inviting me to your podcast. So the very question which you have asked is a most relevant question which I think every day these days. When I see myself after 20 years of work which I have done, so I would have not taken that path which I have taken till now. I would have traversed a more difficult path, if you say after 20 years down the line, because traversing a difficult path in the initial days would set you for success now, which I feel right now I have not achieved that much which I could have achieved if I would have taken a difficult path. Okay, traditional or a non-traditional, it is okay, but you should always take a risk during your initial days where you have less responsibilities and more opportunities to and you can deliver at, because you do not have any limitations of your family, your anything related to your family responsibilities. You have only focus on your work. But if you ask me now, I would always take a difficult path, and that is for a reason, and I would have been a more successful person, I think so. Okay, that's quite nice to hear. But like as you mentioned, when we are 18, we don't have to worry much about the family, children and other aspects at that time. Suppose you are 18 and you have time till, let's take a hypothetical example, you have time till age of 27 or 28. You have a good 10 years. So would you try to go fail ahead or do things, or you will just take like, nahi yaar, I just want to be here, I am doing a good job, 1-2 साल में switch वगैरह करता हूँ, double triple package उठाता हूँ, ऐश करूँगा? Why you want to go into this thing where there's no path clarity, there's so much fog, you don't know what would be coming in your way? See, this type of attitude 20 years early would have survived you, say like I am surviving till now, okay? But if you say, if I'm an 18-year-old guy right now, and if I have an attitude of, say, short-term happiness over a long-term, you can say long-term visibility, then I would say now these are not the days where you focus on the short term, because so things are changing so fast. If you think you change your job, you earn well and you spend well, okay? So how it is working is, you change your job, you get more work. You change your job again, you are so aggressive in changing, and you are always bringing instability in your life rather than having a stability. So what would happen is, at some point of time, say 5 or 6 years down, when you think you have achieved a certain level or a status in your job, at that point, one fine day, you will not find yourself relevant, because because somebody would definitely replace you in that time frame, because these days the technology or anything, it is evolving at such a faster pace. You cannot be reluctant. You have to learn consciously.
कंटिन्यूसली, यू कैन से नॉट कॉन्शियसली बट कंटिन्यूसली। तो मेरा ये कहना है कि आप फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल rather than the short term goal. Short term goal will be always short lived, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हार्ड वर्क करो, गो द ट्रेडिशनल वे, मोस्टली लर्न थिंग्स पर गो द ट्रेडिशनल वे। सेफ खेलो, बढ़िया रहेगा। और सेफ खेलने के लिए रिस्क भी लेना है बट सेफली खेल के लो। बट ये सोचो कि तुम आज ऐश करना है, ऐश का कुछ अब टर्म्स नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं बचेगी। शायद 28 साल बाद तुम रिलेवेंट ही नहीं रहोगे तो क्या होगा। यू हैव टू मेक इट श्योर कि यू आर रिलेवेंट ऑलवेज। तो और आजकल लोग इस चक्कर में सक्सेस इतनी तेज जल्दी आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो अपना फोकस लूज करके डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा एक फैशन चल गया है। दिस अ ट्रेंडिंग वर्ड हो गया अब कि सब मैं डिप्रेस हूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो इसलिए अगर आप थोड़ा हार्ड वे में जाए रहोगे या आपने हार्ड वे अपनी जर्नी को ट्रेवर्स किया है तो आपके पास हर सिचुएशन में लाइफ को हैंडल करने का रहेगा। इट इज बेटर टू ट्रेवर्स अ डिफिकल्ट पाथ। बिल्कुल सही। दैट द थिंग्स व्हिच पीयूष मेंशनड हियर, इट्स क्वाइट स्पॉट ऑन। जैसे कि यू से व्हेन यू ट्राई टू स्विच अर्ली क्विकली, देन एट दैट टाइम देयर माइट बी प्लेसेस कि आपकी फ्रीक्वेंसी उस जॉब से मैच ना हो। अभी आप एक कंफर्ट जोन में आ गए, उसके बाद यू थिंक कि भाई मेरे से तो अब ये नई जगह, नया चीजें, 400 चीजें सीखने बैठो, फिर वापस मेरी फ्रीक्वेंसी मैच ना हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, कहाँ से कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो थिंग्स माइट टेक अ डिफिकल्ट टर्न आउट हियर। एंड करेक्ट, जैसे पीयूष ने बोला, आजकल ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत चल रहा है। ये कोई क्यों, हम या तो बहुत ज्यादा स्विच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा आ गया अचानक से, और कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी डोंट नो हाउ टू मैनेज द मनी। ठीक है, क्योंकि अचानक से भाई अगर किसी के पास 50,000 रुपए आ गए तो कोई क्या करेगा। आजकल के जेनजी व्हाट दे विल डू, दे विल गो बाय सम गुड शूज, बाय सम गुड टी-शर्ट, क्लोथ्स, एनीथिंग। तो पीयूष, माय क्वेश्चन हियर इज कि सपोज आज की तारीख में आपके पास, चलो एक नंबर लेते हैं, सपोज इट इज लाइक 5 लाख रुपए आ गए, कहीं से कैसे भी करके आ गए, एंड यू आर एट द पॉइंट कि यू स्टिल स्टिक टू द सेम जॉब और यू टेक अ पाथ आउट। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला आई वोंट गो थ्रू द सेम पाथ, उन्होंने अभी बोला कि आई विल टेक अ सेफ बट आई विल टेक सम रिस्क आल्सो। तो ये आपको सपोज एक कॉलिंग आ गई कि 5 लाख रुपए आपके हाथ में है, तो अब आप क्या करोगे, आप उसे मैनेज कैसे करोगे उस पैसे को आप? मैं डेफिनेटली 5 लाख रुपए अगर आए हैं तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि 20% की उसमें रिस्क ली जाए। 1 लाख रुपए का रिस्क जरूर लिया जाए। अगर मेरे पास कोई आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, सो आई शुड इन्वेस्ट दैट in myself. I should invest 1 lakh. 4 lakh can be for the savings, or 1 lakh, you can say 1 lakh I can invest in myself. 1 lakh can be spent on my luxury, you can say. That is also important because it is always a balanced life. And 3 lakhs can be for the future purpose where it can be used again in investing myself. See, investment will always give you returns. So you should always invest. Invest is not like always investing in stock markets or mutual funds or SIPs. It is like investing in yourself. So 1 lakh investing in yourself is like you had some ideas or thoughts or process. तुम्हारे पास कुछ है, तुमको कुछ करना आगे, तो कम से कम अपना 20% तो तुम रिस्क में डालो कि शायद वो 1 लाख रुपए 1,000 करोड़ भी हो सकते हैं आज की डेट में, अगर तुम 20% को फोकस तरीके से डालोगे। अगर तुमने कुछ भी रिस्क नहीं ली, से अगर तुमने उस 5 लाख को सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह खेला, स्टॉक्स में डाला, SIPs में डाला, म्यूचुअल फंड्स में डाला, तो वो 5 लाख का 20 लाख हो गया। बट तुमने अपने, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या रहा, तुमने क्या गेन किया, आफ्टर 5 years क्या होगा, वो 20 लाख रुपए हो गया। बट प्रखर जो है, प्रखर तो 5 साल पहले भी सेम था, आज भी सेम है। He has not changed. बिल्कुल सही। तो लाइक एज आपने बोला पीयूष कि 5 साल पहले भी मैं वैसा हूँ, अभी भी वैसा हूँ, खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया मुझे जस्ट आपकी बातें सुनते हुए कि यू नो व्हेन यू स्टार्टेड यू वर टॉकिंग दैट जब आपने ज्वाइन किया 2 दिन फॉर्मल पहना है, 3 दिन फॉर्मल पहना है, 1 दिन टाई पहना है, विदाउट टाई 1 दिन में बाई चांस ऑफिस चले गए तो भाई वहीं से बाय बाय टाटा, गो होम बैंक, ऐसा हो जाता था। कोई किसी एक दिन कभी कैजुअल
वंस इन अ ब्लू मून आपको कैजुअल पहनने मिल रहा है। तो आपका टेक क्या है, आप क्या, व्हाट शुड वी वेयर एवरी डे? क्योंकि जेनजी को तो मैंने आज तक, आई लाइक इट्स क्वाइट अ टाइम, आई नो सम ऑफ द जेनजी किड्स आउट हियर, बट उन्हें मैंने बहुत रेयरली कोई फॉर्मल्स में आते हुए देखा है। सब कैजुअल में आते हैं, कोई कार्गोज में आता है, कोई इट्स लाइक अब बस ऑफिस जाना है, कौन ही देख रहा है, यही हमारा माइंडसेट रहता है, ये कौन ही देखेगा हमें ऑफिस में। सो व्हाट वुड यू से कि हमें, व्हाट इज योर टेक, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यूनिफॉर्म का खुद का एक वो होता है, व्हाट वी कैन से जरिया होता है, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू गो, एज वी ऑल नो लाइक फर्स्ट ड्रेस अप इज व्हाट, फर्स्ट इंप्रेशन इज व्हाट यू लीव ऑन द पीपल। सो आपको क्या टेक है कि वो लाइक व्हाट शुड बी द केस, हमें रोज फॉर्मल्स पहनने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर डेज होने चाहिए, इट शुड नॉट बी जस्ट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर डे और टाइम कि भाई कोई बड़ा हस्ती आ रहा है, कोई बड़ा सीनियर बंदा आ रहा है तो ये हम पहन के जाएंगे जस्ट टू इम्प्रेस फॉर वंस इन अ ब्लू। तो व्हाट वुड बी योर टेक हियर पीयूष? माई टेक, देखो प्रकार ऐसा है कि यूनिफॉर्म वुड शुड नॉट बी देयर ऑन द कॉर्पोरेट जॉब। देखो ऐसा है कि अब कल्चर चेंज हो चुका है। उस समय यूनिफॉर्म से स्लेव एंड मास्टर का कंसेप्ट आ जाता है, मास्टर एंड स्लेव कल्चर कम्स इन। सो वेयर, बट इन सेइंग दैट यूनिफॉर्म शुड नॉट बी देयर, बट देयर शुड बी सम ड्रेस कोड, appropriate dress code that the Gen Z should follow. It cannot be like they should wear anything and come to office, like you said, cargos or anything. But there should be some for casual dress codes which should be there, and there should never be any foundation on uniforms. See, uniforms are for the schools, and there is a particular reasons for schools or colleges to have a uniform that brings a sense of what you say. Uniform brings a sense of leveling in the schools or colleges, but when you come to a job, it is uniform. There should not be a leveling, say like तुमने अच्छे कपड़े पहने तो तुम पैसा ज्यादा कमाते हो, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो मैं अच्छे घर से नहीं हूँ। ये this type of things should be only till the schools, जहाँ पे एक और दूसरे बच्चे के बीच में डिस्टिंग्विशिंग ना होनी चाहिए। बट व्हेन यू कम टू द कॉर्पोरेट जॉब, एवरीवन इज अर्निंग डिसेंट, यू आर अर्निंग डिसेंट, सो यू शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेस कोड, बट नॉट लिमिटेड टू द कैजुअल और टाई। दैट type of a master and a slave mentality should be written off, and I would definitely am against the uniform, but the dress code should be there, a proper dress code should be there, where, and always now we have to adapt to the Gen Z culture, and we cannot say that हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हम पहनते थे ऐसा कपड़े, तो हम आजकल के बच्चे तो कुछ भी नहीं पहनते। बट मेरे को भी अब तुम्हारे शूज में आना है, I have to learn from Gen Z. If something is cool about Gen Z, then the millennials or older than that should also adapt and try to be in that culture, rather than हम अपने आप को superior दिखाएं या उनको inferior दिखाएं. There is nothing like that. I think we should adapt to the Gen Z culture also. So very well said, Piyush, कि adaptability and evolution should go hand in hand. हमें adapt होना चाहिए whatever the situation is or whatever the conditions are. So Piyush, it's quite nice to listen all about your thinking and the ways and all. Just एक आजकल हाइप बहुत बन रही है चीज़ों की, और हमें कोई एक चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। जैसे कि इफ यू सी इन द टेक डोमेन, ओके, पहले ऐसा होता था कि पहले तो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये सब चल रहा है, ओके। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैपेंड कि अब एआई की ही हाइप बन रही है। तो व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम द ईगल आई व्यू, तब हमें लगता है कि अब जब तक मैं जाऊँ, उसको ग्रास रूट लेवल से पढूं, उसकी मास्टरी हासिल करूँ, तब तक तो हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, स्टेबिलिटी चली जाती है, उसकी हाइप ही चली जाती है। तो हाउ कुड अ पर्सन, फॉर इंस्टेंस आई एम अ जेन जी, मैं तो बस अभी जस्ट एंटर किया कॉर्पोरेट लाइफ, बेसिक्स पता है, मुझे नहीं पता किस डोमेन में जाना चाहिए, व्हाट वुड बी द स्कोप आउट हियर। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर मी इफ आई एम जस्ट एंटरिंग इन दिस डोमेन, आई डोंट नो कि कहाँ से शुरू करूँ, एआई पढूं, एआई एजेंट्स पढूं, या मैं पूरा एकदम वो जो डीप लर्निंग होता है, स्कैन, एम्बेडिंग्स, क्या सब होती है, ये सारी चीजें, आई डोंट नो व्हाट, वेयर शुड आई स्टार्ट, आई एम क्वाइट, देयर इज नथिंग क्लैरिटी फॉर मी। अब यहाँ पे मेरा दिल भी कर रहा है कि यार लेट्स लीव द जॉब, गो टू अ स्टार्टअप, क्योंकि चंचल मन है, जेंजी हूँ, मेरे को तो स्टार्टअप कल्चर, ये शार्क टैंक, ये सब बड़ा देखा है, तो मेरे दिमाग में तो वही सब चलता रहता है। तो स्टेबिलिटी कहीं से कुछ नहीं आई। तो व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस कि मैं
अगर यहाँ रह रहा हूँ, if I'm like living in a job, I have to do this job, I'm happy with this thing, तो where should I start? What should be the domain expertise which I should take as per your understanding? Okay, very good question. So this is very relevant in this today's world where everything is very fluid and dynamic. With fluidity, the very term you told, the basics, your basics should always be right. You should focus on basics and you should be fluid. You have to adapt at each and every moment. Say there is a time frame, say it's a transformation period, right? But you have to adapt. See, if AI is in right now, you have to adapt to that AI. But keeping your basics right would always allow you to adapt new things, right? So you have to unlearn the past, and then learn again a new thing. Okay? So AI will be there. There will be changes to the AI, but it would always be there. See, like when you talk about the blockchain hype or a big data hype, blockchain is still there, right? And big But data उसकी is उतनी root नहीं, उसकी growth नहीं है, उसका इतना नाम चलन नहीं है ना. correct. But blockchain is still there, right? It is there. So that doesn't mean blockchain will go, but the use cases. So like right now they are saying AI will transform everything, but you say in the real world where the implementations actually, if you talk to a 500 Fortune clients, they are finding it very difficult, or CEOs to talk to, they are finding it very difficult for AI to implement the projects. There are numerous delays which are there, right? But then also there is an hype. So it would always be like there's a business thing. This is a business. Hype is always created. Why? Why it is created? Just to earn that premium. But if you have a basics right in AI also, you will pass through this hype and survive in this AI culture also, right? So, but yeah, you have to adapt to the new AI versions. It cannot be like you in the past, the learning which you were doing would survive you, make you survive for say 6, 7, 8 years. Say in 2000 era, it would let you survive for 10 years. But in say after 2010, the period was 5 years, 6 years. Then it again reduced to around 2 to 3 years. The learning now it is reduced to even months. Then you have to adapt to that, right? But the domain would not change. Say if you're using in banking, if you're using in hospitals or medical, दवाई तो बनेंगी. बैंकिंग में ट्रांजैक्शन द कोर बेसिक्स विल रिमेन सेम. एआई कितना भी आ जाए डेबिट और क्रेडिट ही ना करेगा पैसा. बिल्कुल. पैसा दवाइयां तो बनेगी, दवाइयां तो फिजिकली खानी है. ऐसा तो है नहीं कि एआई तुमको मुंह में खिला देगा. करेक्ट. बिल्कुल. सो द बेसिक्स रिमेन्स, बट you have to adapt both the traditional and the new modern, and that is how the real world is. You have to adapt AI. You cannot ignore. If you are ignoring, you are thinking that your only basics will do the thing for you. I think you are on a wrong path. You have to adapt. You have to be very, very, very fluid now. आपकी adaptability, sorry to cut, आपकी adaptability बात समझ आ रही है. Fluidity, like be a water, you have to take the ship whatever vessel you are captain, okay. But suppose अगर मैं अभी AI समझ रहा हूँ, basic समझ रहा हूँ, कुछ भी समझ रहा हूँ, after a period of time से जैसे आपने अभी कुछ months तक की बात है, suppose after an year there is a hype of something else, not AI, not anything, something out of the box, okay. तो मेरी तो वो नॉलेज तो एक तरह से लॉस हो गया. नहीं, लॉस क्यों हुई? दैट एआई इज स्टिल वर्किंग. ये ऐसा नहीं होगा कि एआई चला ही जाएगा. एआई विल अडैप्ट टू न्यू वेज ऑफ लर्निंग, न्यू वेज ऑफ वर्किंग, राइट? यू हैव टू अडैप्ट. सी, पहले अगर आप ऐसे सोचो इसको, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. बिल्कुल. फिर इलेक्ट्रिसिटी आई तो लोगों ने बोला कि ये लैंप्स बंद हो जाएंगे. लैंप्स आज भी बिकते हैं. जी, बिल्कुल. But that is a decorative thing now. Earlier it was a day-to-day uses. But बिक तो रहे. पर अब आपको ये देखना है कि you have to adapt to the electricity. इलेक्ट्रिसिटी में भी रोज चेंजेस हो रहे हैं.
ट्रेन बनी पहले, फिर एरोप्लेन्स बने, लोग एरोप्लेन से जाने लगे, तो ट्रेन भी है, एरोप्लेन भी है, बस भी है, रोड भी है, एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो एवरीथिंग विल रिमेन देयर, बट यू हैव टू सी ग्रेजुअली. अगर आपको लग रहा है कि अब नई चीजें आ रही हैं और आप लोग पीछे अगर नहीं जा रहे पीछे, वो जो एग्जिस्टिंग चीज पे काम कर रहे वो सही जा रहा है पाथ पे, ठीक है. नहीं जा रहे तो यू टू अगेन स्टार्ट लर्निंग अगेन, अनलर्न दैट एग्जिस्ट पास्ट एंड देन अगेन स्टार्ट लर्निंग थिंग्स. यू हैव टू अडैप्ट, ये करना ही पड़ेगा. ये अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर द ट्रांसफॉर्मेशंस, वेयर द डायनामिक्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. So you have to live according to that, keeping in mind it doesn't harm your peace. Got it. Keeping in mind, इसीलिए मैंने बोला कि आप डिफिकल्ट पाथ ट्रेवर्स करने की कोशिश करो, न कि there is a very good saying, all try to take path which is right rather than faster path लो wrong side से. Okay. Try to take the path. It is a difficult path, you know that is right, but it is a difficult path. पर तुमको वहां पहुंचने के लिए अगर wrong way दिख रहा है, वो faster पहुंच रहे हो, तो somewhere you will miss the journey and you will reach the goal. But वहां पहुंचने के बाद तुमको जो learning नहीं थी उसके कारण तुम आगे नहीं पहुंच पाओगे. तो तुमको ये learning journey है. It can never be point A to point B to point C. Okay. It is A to B, B to C. You cannot ignore 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. You cannot go directly to 1 to 2. You have to traverse the journey. If you experience the journey, you will always adapt, learn everything, unlearn and again learn. Okay? Got it. But जैसा आपने बोला कि that सपोज मेरा अभी भी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर भी खटक रहा है. फॉर इंस्टेंस, जब मैंने कुछ चीज लर्न करना चालू किया, 2 करोड़ की मार्केट में मैंने जब शुरू किया, तो आई एम लाइक, मैं अगर 1% हो गया तो आई एम गेटिंग गुड मार्केट. बट आफ्टर सम टाइम और पीरियड ऑफ टाइम वो 2 करोड़ की मार्केट अगर मेरी 2 लाख की मार्केट हो गई, फिर तो एक तरह से तो मेरे लिए तो मेरी मार्केट कैप्चर ही कम हो गया, मेरी तो मार्केट रीच कम हो गई. फिर माना मैं उस चीज का नीश बन जाऊंगा, डोमेन एक्सपर्ट बन जाऊंगा, सब हो जाएगा, बट मेरे को तो मतलब वो काम आगे आएगा नहीं आएगा, वो तो स्टिल एक क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा ना बड़ा सा मेरे लिए. तो आपको वो क्वेश्चन मार्क को एनालाइज करना होगा. आप एनालाइज करोगे, आप देखोगे, आपके पास 6 महीने का टाइम और दोगे, तब तक आपको पीछे से आप यू स्टार्ट. ऐसे मैंने पहले भी बोला है कि 20% यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ. 20%, 20% भी अगर आप अपने, आप ये सोचोगे कि मनी से 20%, लोग आजकल बोल रहे हैं कि आपकी सेविंग्स 20% होनी चाहिए, वो एसआईपी में डालना चाहिए, वो ग्रोथ होगा. तो इसी तरह मैं जो सोचता हूँ, मॉनेटरी टर्म्स में इन्वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप 20% अपने पे इन्वेस्ट करो. योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योर मेंटल ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जब आप मेंटल ग्रो करोगे तो आप इजिली अडेप्ट कर लोगे जो चेंजेस आ रहे हैं. अगर आप मेंटली ही नहीं होगे तो आप स्ट्रेस में होगे. आप एक जर्नी से दूसरे जर्नी पे ट्रेवर्स ही नहीं कर पाओगे. आप हमेशा वही उसी जर्नी में ही खो जाओगे. Okay. आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो. आप अपने, इवन योर फिजिकल हेल्थ वुड डिसाइड योर अडेप्टेबिलिटी. बिल्कुल. अगर आप डिसिप्लिन हो, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तो डेफिनेटली यू विल सर्वाइव इन दिस मार्केट फॉर अनदर 30, 40, 50, 60 years. सी, ऑलवेज व्हेन देयर वाज नो कंप्यूटर्स इन द बैंक, तब लोगों को लगता था कि सारे जॉब चली जाएगी. आज जब कंप्यूटर आए बैंक्स में, तो बैंक ग्रो करके 100 गुना बढ़े ज्यादा. करेक्ट? बिल्कुल. तो अपने आप बैंक में जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हो गई, वो 100 गुना इंक्रीज हो गई. बिल्कुल. हाँ, पर उसमें जितने लोगों ने वीआरएस ले ली, वहां पे बैंक ने उस पीरियड में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वहां पे बैंक ने बोल दिया, क्योंकि वो सरकारी जॉब थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आई, वहां पे रिटायरमेंट जिसने ले ली वो आज की डेट में न जिंदा है, क्योंकि उनको तो खाने का पैसा चाहिए, तो वो चेंज नहीं कर पाए, वो मर गए. बट उसमें से 10 में से 2 लोगों ने, जिसने कंप्यूटर के एरा में आए, जिसके लिए आप ये सोचो कि जो रजिस्टर में मेंटेन करते लिखने, तो उसने टाइपिंग सीख के कंप्यूटर में एंट्री करना सीख लिया. तो आपके लिए तो एआई में ही अडेप्ट करना है इजीली. न्यू वर्जन ऑफ एआई आपको अडेप्ट करना है, न कि आपको एआई से किसी और चीज में जाना है.
बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो आपके लिए तो इजी है अगर सोचोगे आप उस जमाने के साथ कंपैरेटिवली काफी इजी हो गया। हाँ, भले लोग कहें कि अभी जमाना डिफिकल्ट है, वो जमाना भी डिफिकल्ट था, हमेशा जमाने डिफिकल्ट आएंगे और आते रहेंगे जाते रहेंगे। इट इज लाइक योर जर्नी, यू हैव टू थिंक कि अगर कोई पास्ट में बिलियनियर बन चुका है, ट्रिलियनियर स्टीव जॉब्स बन चुका है, तो अब कोई भी एप्पल नहीं नया बना सकता, ऐसी कोई बात नहीं होती। बिल्कुल। तुम भी नए ट्रिलियनियर बन सकते हो, नहीं तो एलन मस्क कभी भी दुनिया का रईस आदमी नहीं बन पाता, स्टीव जॉब्स ही रह जाता या माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स ही रह पाता। पर उसको ओवरकम करके उसने नई चीज की, उसने अडेप्टेबिलिटी लाई, उसने नया किया कुछ जो बिल गेट्स ने नहीं किया, नहीं तो बिल गेट्स ही सब कुछ कर लेता। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा होगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, आप जहां खड़े हो वहां से शुरुआत करो। आप ये मत सोचो कि पास्ट में तो ये हो गया तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, कर सकते हो तुम। आपने जितना, मैं आज की डेट में भी मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं सोचता हूँ कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा। आज की जबकि 20 साल मैंने काम कर लिया, उसके बाद भी मेरा अभी भी एक्यूमेन इज टुवर्ड्स बिजनेस, एंड आई विल प्रूव दैट। That's so great. So as you can see, even the midst of cacophony, you are not supposed to give up of whatever comes in your way. If you have idea, go work. This is the crux of the understanding. But एक क्वेश्चन जस्ट पीयूष, इसमें जैसे अपना जर्नी की बात होती है, मेरी जर्नी मेरी है, मेरे साथ वाले भी बहुत थे, ठीक है, जो मेरे से बात चालू किए, जो मेरे से पहले चालू किए। When I am going from 1 to 2, वो तो 1 से 3 पहुंच गए। Even after some certain period of time, let's have a long term picture. मेरे को तो अंदर कहीं ऐसा खटकेगा ना कि यार मैं आई एम 1000 times 100 times better than the other guy and still he is getting what I as per me he shouldn't get. मेरे से पहले उसको क्विक सक्सेस मिल गई या कुछ वो मिल गया, तो उस पॉइंट पे क्या थोड़ी अंदर से जेलसी, थोड़ा जलन, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार व्हाट इज रॉन्ग विद मी। तो इट्स अ ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजी, किसी के साथ भी होता है। तो उस पॉइंट पे अगर आई डोंट नो व्हाट इट बी बट जस्ट ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी, कभी आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो तो हाउ यू जस्ट thought with I won't give up, मैं तो भी भाई there's still long way to go, how would you tackle this kind of situation? क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, फोर्थ पर्सन नहीं है, इट्स अ वॉर बिटवीन मी एंड माय बेटर वर्जन और द थिंग आई वांट। मैं अपनी जर्नी पे फोकस करूं, मैं उसको देखूं, इसको देखूं, क्या करूं, आई एम स्टिल लाइक काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये कभी ना कभी हर इंसान को होता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हो रहा है। हाउ यू टैकल्ड इट, क्योंकि ये एक्सपीरियंस किसी को नहीं पता, एंड इट्स प्योरली अनस्क्रिप्टेड फॉर ऑल एवरीवन सीइंग दिस। ये क्वेश्चन अभी आया है, इट्स नथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट शुड बी द आइडियल आंसर, इट कुड बी एनीथिंग, बट लेट्स हियर व्हाट पीयूष सेज अबाउट एंड व्हाट्स हिज टेक ऑन इट। प्लीज पीयूष। See, what I have come across these type of questions always, every day I come across this, and I do not stop them coming. It should not stop coming. It should, these type of questions should motivate you, encourage you to work more hard. It should not demotivate people who compare with others, their success. There are philosophers, or if you go to a mental gurus or so many Instagram gurus, they'll say no, you should not check on the surrounding world, so only focus on your goals and all those. These are bullshit from my perspective. Okay. You would compare, you would see the surroundings and do that, but then you have to take that as a, you can say it as a motivation rather than taking it as a demotivation and getting depressed. And तो क्या होगा अगर आप इसको मोटिवेशन की तरह नहीं लोगे, तो आप 101% श्योर है कि आप यू विल गो डाउन। पर अगर आपने इसको एज एक 1% में भी मोटिवेशन की तरह लिया, आप सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में और सब कुछ, तो आप आज से अपने आप को नेक्स्ट वर्जन जो देखोगे वो बेटर ही देखोगे। भले आप हो सकता है कि उनके बराबर ना पहुंच पाओ, बट यू विल बी अ बेटर वर्जन फ्रॉम टुडे टू टुमारो। बिल्कुल। बट अगर आपने उस आदमी या उस कलीग या उस एनवायरनमेंट में आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिलीज के देख लिया, देयर विल बी ऑलवेज समबडी बेटर देन यू। ओके। यू शुड नॉट थिंक कि मैं सबसे अच्छा हूं। जहां पे ये सोच आ जाएगी, वो फिर ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी माइंडसेट नहीं है वो मेरे हिसाब से। जहां पे आप अगर ग्रोथ की तरफ सोच रहे हो, तो यू विल ऑलवेज टेक थिंग्स,
लिसन टू द थिंग्स, राइट? और हमेशा जेलिसी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हेल्दी जेलिसी में क्या गलत है? आप एम करोगे, आपको पता चलता है कि कोई ये कर रहा है, तो आप ये मत सोचो कि वो नीचे आ जाए, आप ये सोचो कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं या मैं उससे ऊपर पहुंचूं। बट वही मेरा क्वेश्चन है, जैसे सपोज क्या मैं आज से ट्राई कर रहा हूँ, मैं उस बंदे से, सपोज आई एम ट्राइंग टू गो अहेड ऑफ हिम एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अब मेरे को लग रहा है आई एम गिविंग माय लेवल बेस्ट, आई एम गिविंग माय थिंग्स, ओके, आई एम बेटर वर्जन फ्रॉम यस्टरडे, एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके, एवरीथिंग सीम्स क्वाइट मोटिवेशन परफेक्ट, बट स्टिल आई एम एट द सेम प्लेस एंड दे आर एट द सेम प्लेस। सो क्या ये टाइम का कुछ है, कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, क्या होगा? क्योंकि एक पॉइंट ज्यादा आप किसी चीज पे अटक के रह नहीं सकते, यू हैव टू इधर होल्ड ऑन टू इट, लीव इट और लेट इट गो। अब ये बड़ा वो हो जाता है, एक इंटरनली वो हो जाता है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। So you have to move out of that conflict. So in that way, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी रहना चाहिए कि so that you have a balance. See how I motivate myself is in the morning. Every say night I am feeling कि अब आज बहुत कुछ नहीं कर पाया मैं, ठीक है, बिल्कुल जो करना चाहिए तो वो नहीं कर पाया, बट अब कल आया तो कल मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि पिछले दिन कर क्या नहीं पाया, मैं सोचता हूँ कि आज मैं कर लूंगा, मतलब होपफुल, ठीक है? तो स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन. सो इफ यू अंडरस्टैंड प्रोक्रास्टिनेशन, स्टार्ट डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स द वेरी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. डोंट डिले थिंग्स. आप ये देखोगे जब आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहे हो, आप डिली डॉलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप इतने सीरियस हो, आपको जेलस हो रही है किसी की सक्सेस से, आपको लग रहा है कि वो मेरे से बहुत अच्छा आगे निकल गया, मेरे से बहुत कुछ नहीं जानता, तो देखो कि वो क्या सही कर रहा है. शायद आपको आता सब कुछ हो, ये मैं जानता हूँ कि मेरे को आता सब कुछ है, पर मेरे पास आज के मेरे टू डू लिस्ट में 20 टास्क है, 20 के 20 टास्क में से मैंने 19 टास्क नहीं किए, एक टास्क किया आज के दिन में, अब वो 19 टास्क नेक्स्ट डे चले गए. शायद वो जो आपसे 100 टाइम्स लेस है, उसमें 20 में से 15 टास्क भले छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर लिए और उसके पास कैस्केटिंग में 5 ही टास्क है. बिल्कुल. तो फिर वो आपसे हमेशा बेटर वर्जन नहीं होगा. आप कितना भी आप सोचे, यू हैव टू स्टार्ट फिनिशिंग थिंग्स. बिल्कुल, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं आप सोच सकते कि, और मेंटली पीसफुल रहना है, स्पिरिचुअली रहना है. ऐसा हो सकता है कि एट द एंड ऑफ योर करियर ऑल्सो यू फाइंड कि आपको कुछ नहीं मिला, आप नहीं आ पाए कहीं पे, तब भी आपकी जर्नी ब्यूटीफुल होनी चाहिए. आप इसके भगवत गीता से देख सकते हो, आप राम जी की जर्नी से देखते हो. आप ये बताओ कि वो भगवान होके श्री कृष्ण जिस दिन से जन्म लिए, वो जब पेट में थे तब से उनको मारने के लिए लोग आ गए थे. बिल्कुल. वो जब पैदा हुए तो अपने माता पिता के साथ नहीं रह के वो चले गए गोकुल. गोकुल से वो मथुरा आ गए जब बड़े हुए, जबकि अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए, नहीं रहे, छोड़ के आ गए जिस समय उनको वहां रहना चाहिए. मथुरा में उनके लिए चारों तरफ लोग मारने के उनके थे. फिर वो वहां कृष्ण मथुरा से निकल के चले गए, आखिरी में सब कुछ जीतने के बाद, उसके बाद भी वो चले गए द्वारका. द्वारका में उनको श्राप दे दिया गया, उनका वंश नहीं आगे बढ़ा. फिर भी उन्होंने उनकी जर्नी में उन्होंने कहीं पर भी रिग्रेट कोई पास्ट को नहीं किया, ना अपने आप को किसी से कंपेयर किया. अगर आप एक श्री कृष्ण के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में भी मानोगे तो उनकी जर्नी में अगर आपको लगेगा कि उन्होंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया है, राइट? बट उनके स्ट्रगल्स जो है सर, हम वो आपको सीखना चाहिए कि ऐसे जब भगवान के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी ऐसा हो ही सकता है. उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको अपनी जर्नी जीनी चाहिए. That's so nice and so motivating to listen about this thing. So now we'll be having a breakout here, and let's take a break. So as we have talked to Piyush and we have gained valuable insight and understood some of the aspects, what we should do, what we should not. So it's time for a fun activity right now with Piyush, and for that we'll be getting joined by Mr. Shivam Rajput, who is a Gen Z, and he'll be coming in for a rapid fire question, this or that, with Piyush. So please, let's welcome Shivam Rajput and let's have a good engaging rapid fire round with them. लीडरशिप और टीम वर्क. टीम वर्क. साइकिल और कार. साइकिल.
You will think that why this kind of question, Yes. but it is for just fun. You can understand that. Work from office or work from home? I would suggest hybrid. Uh-huh. Me too. So sleep or work? I know the answer, but still. Sleep. So as an Indian, the first one is coffee or tea? T. Mhm. Experience or innovation? Experience. Mhm. Leadership or teamwork? Teamwork. Mhm. Success or satisfaction? Satisfaction. Mhm. Startup hustle or corporate? You can say Startup stability. Start. Mhm. Respect or recognition? Respect. Respect. So that's all. So we for the today's session, guys. I hope you might have got some glorious insights and थोड़ा अच्छा ही ज्ञान मिला होगा. ये experiences, ये podcast, सब कुछ unscripted था. There was nothing which was scripted, nothing even discussed with the guest here. So this podcast is impromptu. Everything is that. It's not your daily life podcast. ठीक है कि हम we both know the questions. We are asking what are the good things. Okay. हम यहाँ वो बातें कर रहे हैं जो एक normal human या किसी को भी हो सकती है. So I hope you like this one and let's stay tuned for the next podcast.